تو آج کی پراپرٹی کچہری کا سیگمنٹ کا آغاز شروع کرتے ہیں کیو این اے ود ای ایس ایم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی پراپرٹی کچہری شو میں. آج کا ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے کیو این اے ود ای ایس ایم. تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا سر, آج کے پہلے کیو این اے سیگمنٹ کا سوال یہ ہے کہ بے زبانی یعنی جو ہمارا ہوتا ہے ڈائریکٹ انتقال جسے ہم لوگ کہتے ہیں, یہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ اچھا, جہاں تک وامک میرا خیال ہے نا, بے زبانی یا ڈائریکٹ انتقال یہ کبھی بھی نہیں کروانا چاہیے. اس کے میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں, 2-3 ریفرنس دیتا ہوں. کہ ایک آج سے 15 سال کا پہلے کا کیس آیا ہمارے پاس. سوال کسی نے کیا تھا کہ 15 سال پہلے ہم نے بے زبانی مطلب ڈائریکٹ انتقال کروا لیا تھا, لیکن جب ہم نے بے زبانی ڈائریکٹ انتقال کروایا تو جو پٹواری تھا اس نے جو ایک گورنمنٹ کے واجبات ہوتے ہیں, ایک اماؤنٹ ہوتی ہے, وہ پے نہیں کی, سرکاری واجبات. تو اب 15 سال کے بعد کہیں تحصیلدار کے سامنے وہ کیس آیا تو تحصیلدار نے وہ جو انتقال ہے نا ریورس کر دیا. جو پرانا مالک تھا اس کے نام پہ کہ یہ تو انتقال ہوئے نہیں ہے, یہ تو پرانے مالک کے نام پہ پراپرٹی کر دو. تو ہمیں پھر بھی اس چیز کا نہیں پتہ چلا. جب ہمیں ضرورت پڑی فرد برائے ریکارڈ یا فرد برائے بے میں نے لینا تھا, اس کے لیے میں گیا تو پتہ چلا جی یہ تو پراپرٹی آپ کے نام پہ نہیں ہے, ابھی تک پرانے جو ہے مالک ان کے نام پہ چل رہی ہے. تو اب دیکھیں وہ شخص پھنس چکا ہے, کیونکہ 15 سالوں میں کم از کم بھی نا 4 دفعہ جمع بندی ہو چکی ہے, اور اب اس کا کوئی طریقہ کار بنتا نہیں ہے. اب اگر تو 1-2 مہینے لیٹ ہوتا ہے نا, پٹواری جو ہے نا یہ اکثر سرکاری واجبات پے ہی نہیں کرتے. آپ ان کو دے دیتے ہیں لیکن وہ آگے پے نہیں کرتے, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, آپ ان سے اگر کوئی چیز ڈیمانڈ کریں تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں بنا کے, لیکن بغیر اسٹیمپ کے, بغیر سائن کے. تو یہ مسئلے ہیں پاکستان کے اندر کافی زیادہ ہیں. اچھا, اب اس کا حل جو ہے نا وہ پھر اگر 1-2 مہینے لیٹ ہوا ہے تو پھر تو واجبات اتنے زیادہ نہیں ہوتے, تحصیلدار تک کی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اب وہ معاملہ کافی 15 سالوں کا ہے, اور میں بتا چکا ہوں کہ کم از کم 4 دفعہ جب بندیاں ہو چکی ہیں دوبارہ. تو پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ ان کا جواب میں نے یہ دیا کہ ایک دفعہ ایک اپلیکیشن تحصیلدار کو یا اے سی کو یا ڈی سی کو لکھ کے دیکھ لیں, اگر کچھ بنتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ سول کورٹ سے رابطہ کریں. اور سول کورٹ سے رابطہ کر کے اس میں اپلیکیشن میں یہ آپ لکھیں کہ جتنے بھی سرکاری واجبات ہمارے بنتے ہیں ہم پے کرنے کو تیار ہیں. تو اب یہ جتنا بھی وہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا بے زبانی کی وجہ سے ہوا, ڈائریکٹ انتقال کروا دیا انہوں نے. اچھا, پھر دوسرا طریقہ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ انتقال کرواتے ہیں نا, 2 سے 3 دن بعد, 4 دن بعد, ہفتے بعد, تھوڑے ٹائم پیریڈ کے بعد آپ چلے جائیں پٹوار خانے یا لینڈ ریکارڈ سینٹر چلے جائیں, ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ فرد برائے ریکارڈ مجھے دے دیں. فرد برائے ریکارڈ آپ نے اگر پٹواری سے لے رہے ہیں تو وہ اسی طرح لکھا ہوا نہیں لینا, بلکہ اس کو کہنا کہ ادھر سائن اور سٹیمپ کے ساتھ مجھے دو, کیونکہ وہ پھر آپ کے پاس ایک پروف آ جاتا ہے. اب اگر پٹواری نے آگے واجبات جمع نہیں کیے ہوئے تو وہ فرد برائے ریکارڈ آپ کو نہیں دے سکتا سائن سٹیمپ کے ساتھ. تو یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ میں ناظرین کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی بے زبانی انتقال یا ڈائریکٹ انتقال کبھی بھی نہ کروائیں. سب سے پہلے رجسٹری کا پروسیجر اڈاپٹ کریں, اس کے بعد انتقال, اور انتقال کے بعد بھی کچھ دن کے بعد فرد برائے ریکارڈ پٹواری سے لیں, اس کو چیک کریں, اور اس کے بعد آپ مطمئن ہوں. سر, آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ شجرہ نسب معلوم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جی بالکل, وامک شجرہ نسب جو ہے نا ہر انسان کو پتہ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر ہم پہلے جائیں نا, تھوڑا سا پچھلے زمانے میں چلے جائیں, تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے, بزرگ تھے, ان کو اپنی 7 پیڑھیوں کا پتہ ہوتا تھا. لیکن ہم اب ہیں, ہمیں نہیں پتہ, میکسیمم دادا تک کا پتہ ہے, اس سے اوپر پر دادا کا نہیں پتہ ہوتا. تو شجرہ نسب جو ہے نا یہ پتہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں لوگ ہجرت کر جاتے ہیں, شہروں میں چلے جاتے ہیں, اور گاؤں دیہاتوں میں پرانے بزرگ جب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص شوق رکھتا ہے اس چیز کا کہ شجرہ نسب اپنا پتہ کرنا ہے, تو اس کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے, ضلع ہے, ضلع کی کچہریوں میں چلا جانا ہے. کچہریوں کے اندر ایک مال خانہ ہوتا ہے, مال خانہ کے نام سے آفس ہوتا ہے, وہاں پہ جانا ہے. اور وہاں پہ جا کر پھر آگے اس مال خانہ آفس کے اندر محافظ خانہ الگ سے بنا ہوتا ہے. محافظ خانہ سے جا کے آپ نے یہ چیز ڈیمانڈ کرنی ہے. لیکن ڈیمانڈ کرنے سے پہلے آپ کو, اگر آپ کے آباء و اجداد کی زمین ہے تو اس کا خسرہ نمبر پتہ ہونا ضروری ہے کہ خسرہ نمبر کیا ہے. وہ خسرہ نمبر جا کے آپ بتائیں گے, اور اس خسرہ نمبر کی بنیاد پر وہ آپ کو شجرہ نسب آپ کا نکال کے دے دیں گے. اچھا, اب یہ خسرہ نمبر
اور شجرہ نسب. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آپس میں ان دونوں کا کیا تعلق ہے. ایک پراپرٹی ہے, خسرہ نمبر تو پراپرٹی میں ہوتا ہے نا, زمین میں ہوتا ہے, اور شجرہ نسب الگ چیز ہے. تو ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں انگریز حکومت کے دور میں, جب یہاں پر پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو انگریزوں کا راج تھا. انگریز کیا کرتے تھے, ہر چیز کا ایک ریکارڈ رکھتے تھے. جیسے آج کل مردم شماری ہوتی ہے, تو ایک طرح کی مردم شماری ہی ہوتی تھی جو کہ ایک دفعہ 1872 میں کروائی گئی, پھر 1880 میں کروائی گئی, اور پھر 1905 میں یہ مردم شماری مطلب ہوئی تھی. اس میں ہوتا کیا تھا کہ ہر گاؤں میں جا کے ایک جرگہ لگتا تھا, پورے کے پورے گاؤں اکٹھا ہو جاتا تھا, اور اس پورے گاؤں جب اکٹھا ہو گیا تو اس کے اندر 4-5 پوزیشنز کے لوگوں کا ہونا ضروری تھا, جس کے اندر آپ کا پٹواری, گرداور, نمبردار, اور یہ اس طرح کی 4-5 پوسٹیں وہاں پہ پوزیشنز کے لوگ ہوتے تھے. تو وہاں پہ ہر بندہ اپنا ڈیٹا لکھواتا تھا کہ میرا نام یہ ہے, والد کا نام یہ ہے, اور زمین ہماری یہ ہے, خسرہ نمبر وغیرہ اس کا جو بھی ہے, اور ہماری قوم یہ ہے. تو اس کو درج کیا جاتا تھا, لیکن ایسے درج نہیں کیا جاتا تھا. پہلے پورے مطلب یہ جو 4-5 پوزیشن میں نے بتائی ہیں, پٹواری اور نمبردار اور گرداور, ان سے پہلے اس کی تصدیق کی جاتی تھی. اگر اس چیز کی وہ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں بالکل یہ سچ بتا رہا ہے, یہی قوم ہے, اس کے بعد بلند آواز میں ایک دفعہ وہ گاؤں کے لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے یہ بات دہرائی جاتی. جب وہ تصدیق کرتے تو پھر اس کا باقاعدہ اندراج کیا جاتا بندوبست کے اندر, باقاعدہ اندراج ہو جاتا. تو یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ سارا کا سارا محافظ خانہ میں محفوظ ہے. لیکن ملے گا کیسے؟ خسرہ نمبر سے. اگر آپ کے آباء و اجداد کی کوئی زمین تھی, اس کا خسرہ نمبر آپ کو پتہ ہے, تو وہ لے کے آپ اپنے کچہریوں میں, ضلع کی کچہریوں میں, مالک خانہ والے آفس میں, اور پھر فردر آ کے محافظ خانہ میں جائیں گے, ادھر خسرہ نمبر بتائیں گے, اور آپ کو آپ کا شجرہ نسب مل جائے. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ عورت کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اگر جائیداد میں ہبہ کر دیا جائے تو اس ہبہ کا کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل وامق, یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت چل رہا ہے کہ عورت کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب وہ محروم کرنے کے لیے آج کل جو ہے نا کافی سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک تو جو والدین ہیں نا, خاص کر کے والد جو خود کو کہتے ہیں بیٹی مجھے بڑی پیاری ہے, وہ ہی چالاکیوں میں پڑے ہوتے ہیں, چال بازیوں میں پڑے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی چال بازیاں جو ہے نا والد زیادہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کرتے ہیں. جی بیٹے بڑے پیارے ہیں مجھے, اور بیٹے جو ہے نا بیٹی کو جو ہے نا حصہ نہ ملے تو بیٹوں کو میں ہبہ کر دوں جائیداد, اور وہ کر دیتے ہیں, چھپ چھپا کے بھی کر دیتے ہیں, سر عام بھی کر دیتے ہیں. پھر ہماری خواتین جو ہے بیچاری وہ اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیتی کسی قسم کا, اور کچھ لے بھی لیتی ہیں لیکن غلط ایکشن لیتی ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آج یہاں پہ ناظرین کو بتانا میں ضروری سمجھوں گا. دیکھیں, اگر والد نے جائیداد ہبہ کی ہے صرف بیٹوں کو, بیٹی کو اس میں حصہ نہیں دیا, حق نہیں دیا, تو بیٹی وقتی طور پر کوئی ایکشن نہ لے. اگر وقتی طور پر وہ کوئی ایکشن لے بھی دیتی ہے, سول کورٹ میں جا کے ایک دعویٰ دائر بھی کر دیتی ہے, وہ کیس چلے گا, کافی عرصے تک چلے گا, اس کے بعد کیس کا ڈیسیژن بھی آ جائے گا, لیکن وہ جو ہے نا پراپرٹی وہ ریورس ہو جائے گا ہبہ, لیکن پھر والد کے نام پہ, کیونکہ والد ابھی زندہ ہے اپنی زندگی میں, تو وہ اپنی پراپرٹی کے ساتھ کچھ بھی کرے, وہ سیل کرے, وہ ہبہ کرے, وہ کسی کو فنڈ دے دے, کسی مسجد کے نام کر دے, مدرسے کے نام کر دے, اپنی پراپرٹی کے ساتھ وہ جو کرنا چاہے کرے. اگر اس نے بیٹوں کو ہبہ کی ہے, آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے, ابھی تک والد زندہ ہے, آپ کیس جیت گئی ہیں, تو وہ پراپرٹی آپ کو نہیں ملے گی, یا حصہ بھی ابھی تک نہیں ملے گا. والد کے نام پہ پراپرٹی واپس ریورس ہو جائے گی. تو اگر والد ایسا کرتا ہے, ہبہ کرتا ہے, تو آپ نے وقتی طور پر کوئی ایکشن نہیں لینا. یہ ایکشن بنتا ہی والد کی وفات کے بعد ہے. جب والد وفات پائے تو پھر آپ دعویٰ دائر کر سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ ابھی میں آپ کو ایک کورٹ کی ججمنٹ بھی بتانا چاہوں گا. یہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے SCMR 2021 اور پیج نمبر 179, آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں بھی ایک مطلب یہ ریفرنس بھی میں نے کوٹ کر دیا ہے. ایک خاتون تھی, ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی سیم زیادتی ہوئی تھی کہ والد صاحب جب اس دنیا سے چلے گئے تو بھتیجے جو ہے انہوں نے کوئی پرچہ نکال لیا, نہیں جی والد صاحب نے آپ کی زندگی میں کہا تھا جی میرا بیٹا کوئی نہیں ہے, تو جب بیٹا نہیں ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی جائیداد بھتیجوں کے نام کر دوں. تو اب یہاں پہ جو بیوہ ہے اور ایک ہی بیٹی تھی وہ محروم ہو گئی. جب محروم ہو گئی تو انہوں نے سول کورٹ میں دعویٰ کیا,
वहां से केस जीती तो फिर हाई कोर्ट में मुखालिफ पार्टी ने अपील कर दी, वहां से सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये जजमेंट दे दी कि जो औरत का हक है उसको मिलेगा। अगर वालिद हयात में हिबा कर में गया है, वफात के बाद वो हिबा टूट जाएगा और जो जिस औरत का विरासत में जितना हिस्सा है वो मिलेगा हर सूरत में। तो यहाँ पे असल मैंने पहले ही जैसे जिक्र किया कि हमारे जो वालिद होते हैं, वालिद इस तरह की चालबाजियां बहुत करते हैं। अच्छा, मेन इनका कंसेप्ट क्या होता है जी, अभी बेटी जो है ना वो तो पराए घर की है, पराए घर में चली जाएगी, तो जो इसको हम हिस्सा देंगे वो तो किसी दूसरे खानदान में चला जाएगा, दूसरे घर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो हिस्सा उस औरत को मिल रहा है वो आप नहीं दे रहे, वो अल्लाह की तरफ से उसका मुकर्रर किया हुआ है। अच्छा, कुछ फैमिलीज यहाँ पे फिर दे भी देती हैं और बड़ा एहसान जता रहे होते हैं और जगह जगह बता रहे होते हैं जी हम बड़े वो हैं, हमने अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा दिया है। तो इनसे बंदा पूछे कि तुम लोगों ने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसका उस जायदाद में वो हिस्सा मुकर्रर किया था। अगर तुम्हें हिस्सा मिला है तो तुम्हारी बहन भी कह सकती है कि हम जी हैं बड़ी जो आला ज़र्फ है, हमने भाई को हिस्सा दिया है, क्योंकि विरासत तो वही है जिसमें भाई को भी मिलना है हिस्सा, बहन को भी मिलना है। लेकिन ये अच्छा, ये फिर भी मैं इनको अच्छा कहूँगा, चलो दे तो देते हैं कम अज़ कम, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ ये सोचते हुए कि दूसरे ख़ानदान में विरासत का हिस्सा चला जाएगा क्योंकि बेटियां पराई होती हैं तो ज़मीन में हिस्सा नहीं देना, ये बहुत गलत करते हैं। ये हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कुरान पाक के अंदर भी एक औरत का, तो ये आप दिया करें। इस तरह उसको इस हक से आप उसका ये हक छीन नहीं सकते। और यहाँ पे गलती हमारी जो है ना ख़वातीन की भी है, ये रिवाज बनाया भी इन्होंने खुद ही है। अक्सर जगह पर मैं देखता हूँ खुद ये साइन करके बयान हल्फी पे दे रही होती हैं जी हमें उसमें विरासत में हिस्सा नहीं चाहिए, ये भी गलत करती हैं। जो एक शरीयत ने एक तरीक़ाकार रखा है, एक कानून रखा है, कम से कम शरीयत के कानून तो आप लोग माने। सर इसमें मैंने लोगों को देखा है, हमारे तकरीबन साहिवाल गांव के अंदर काफ़ी गांव ऐसे हैं, तो क्या करते हैं बहन बेटियों का जो मतलब हिस्सा होता है वो पता है क्या कहते हैं, यार हम लोगों ने देखो बेटा आपका कफन दफन भी करना है, हमने ये भी आपका करना है वो भी करना है, तो आपकी रोटियां वगैरह भी करनी है, तो बेटा आप एक काम करें कि ये जायदाद को छोड़ दें। तो या तो बेटियां को कहेंगे यार बेटा तो एक काम कर माफ़ कर दे हमें, लेकिन ये मतलब इन लोगों की अपनी चालाकियाँ होती हैं, ये बेवजह की चालाकियाँ करते हैं। हालांकि ये चालाकियाँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप खुदा के जुर्मदार भी हैं और उस बहन या बेटी के भी जुर्मदार हैं जिसका आप हक अदा नहीं कर रहे। और इसका हक अदा करना शरीयत है। ये लोग बिल्कुल ही इजीली सर ले लेते हैं कि ठीक है जी मसला थोड़ी है यार, असी बहन दब करता बहन चुप कर जाना। बिल्कुल ठेकेदार साहब, ये बात आपकी हकीकत में ठीक है। असल में शरीयत को हमने चेंज करके रख दिया, शरीयत एक्चुअल में कुछ और है, शरीयत के अंदर जहेज है ही नहीं, और जहेज है भी तो वो ज़रूरत की चंद चीज़ें, जैसे आप देख लें नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया अपनी बेटी हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम को, वो जहेज आप देखें कितना सा था जी सर, ठीक है, एक चक्की थी और थोड़े से 2 चीज़ें और थी। लेकिन यहाँ पे हम जहेज बढ़ा के लाखों तक ले गए हैं। एक अगर मामूली सी फैमिली है तो वो भी जहेज कम से कम 15 लाख 20 लाख, ये एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली का जहेज यहाँ तक जा रहा है, तो उस पे तो खर्चा कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसका जायदाद में हिस्सा है वो मार दिया जाता है। तो शरीयत से तो हम खुद हटे हुए हैं, शरीयत के कानून हमने बदले हुए हैं। सर इतना जायज ना दे, लेकिन उसका जायज जो बनता है वो दे, वो बेस्ट है। इतना जायज ना दे, जितना उसका बनता है वो हक दे, तो समझ में आने वाली बात है। वरना ये जायज दे कि उसके ऊपर आप एहसान ना करें। सर मेरा अगला सवाल ये है, क्या हिबा को चैलेंज किया जा सकता है, और हिबा को चैलेंज करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? असल में वामिक हिबा देखे ना, ये प्रॉपर्टी की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एक आम आदमी नहीं समझ रहा, तो हिबा का वर्ड सुन के ही वो बड़ा अजीब सा लगता है कि हिबा क्या है। असल में हिबा तोहफा जो होता है ना, तोहफा या गिफ्ट, उसको कहा जाता है, और जो ये हिबा का प्रोसीजर किया जाता है उसको गिफ्ट डीड कहा जाता है। तो हिबा एक्चुअल में होता क्या, गवर्नमेंट ने ये हिबा बनाया क्यों था, रूल क्या था कि अगर किसी को आप कोई तोहफा देना चाहते हैं तो अपनी जो कुल आपकी जायदाद है या कुल प्रॉपर्टी है उसका 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आप हिबा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप हिबा कर ही नहीं सकते कानूनी तौर पे। लेकिन इसको हमने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ज़्यादातर हिबा जो इसी तरह इस्तेमाल होता है कि वालिद साहब एक बेटे से नाखुश हैं, एक से खुश हैं, जिससे खुश हैं उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी हिबा कर देते हैं। या अगर किसी बेटी को जायदाद से बेदखल करना हो, सिर्फ बेटों के नाम पे करनी हो,
तो क्या किया जी, वो पूरी जायदाद जो है बेटों के नाम पे हिब्बा कर दी। तो कानून ये कहता है कि तीसरा हिस्सा, जैसे 100 रुपए आपकी जायदाद है और आप हिब्बा करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 33 रुपए कर सकते हैं, 1/3 पार्ट उसका 33 रुपए बनता है। तो इस तरह हिब्बा हो नहीं सकता, ना हिब्बा किया जा सकता है, लेकिन अपनी वक्ती दिली तस्कीन के लिए बंदा हिब्बा कर देता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, वक्ती उसको सुकून मिल जाता है, तस्कीन मिल जाती है। जैसे ही अच्छा, अब दूसरा सवाल साथ ही आपने ये किया है कि हिब्बा को कब चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, जब हिब्बा करने वाला शख्स अगर तो जिंदा है, उसकी हयात में हिब्बा को चैलेंज तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो हक किसी और को दिया गया है वो फिर भी आपको नहीं मिलना, भले आप केस जीत भी जाएं। केस जीत जाएंगे तो रिवर्स प्रॉपर्टी उसी बंदे के नाम पे दोबारा चली जाएगी। हिब्बा वो रिवोकेबल का एक लफ्ज यूज किया जाता है, रिवोकेबल है, रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर वो शख्स इस दुनिया से चला गया, वफात पा गया है, उसके बाद अगर आप उस हिब्बा को चैलेंज कर देते हैं तो, और हिब्बा में ना मैक्सिमम यही देखा गया है कि कोर्ट्स के अंदर जो भी केसेस गए हैं वो तकरीबन तमाम केसेस जीते ही गए हैं, और केस जीत जाते हैं, दावा जीत जाते हैं, तो आपका जो हिस्सा बनता है उस प्रॉपर्टी में, उस जायदाद में, वो आपको मिल जाता है। तो बेहतरीन जो तरीका है वो भी बता दिया, और वक्त जो है वो भी बता दिया कि आफ्टर डेथ, उस बंदे की वफात हो जाए उसके बाद आप उस हिब्बा को चैलेंज कर लें। सर, ये हमारे इलाके में तकरीबन ये अल्फाज जो आपने हिब्बा कहा है इसको बख्शिश कहते हैं। जो आपने पहले बात कही कि लड़कियों को हिस्सा नहीं देने का, ये उसको आसान तरीका होता है कि कोई बाप अपने किसी पसंदीदा बेटों को बख्शिश कर देते, कोई ज़मीन है या कोई जायदाद है, किस ज़मीन है या प्लाट है, वो बख्शिश कर देते हैं। हमारे इलाके में ये आम तौर पे यही अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, बख्शिश, अपने मर्ज़ी से अपने बेटे को बख्शिश कर देते हैं, कोई ज़मीन कोई जायदाद। जी बिल्कुल शफी साहब, यहाँ पे मैं एग्री करूंगा कि गांव देहातों में इंटीरियर सिंध कह लें, पंजाब कह लें या खैबर पख्तूनख्वा कह लें, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं था, और ख़वातीन की तो बिल्कुल पढ़ाई थी ही नहीं, ख़वातीन को तो पढ़ना अलाउड ही नहीं था, तो इन चीज़ों का पता नहीं था। और अभी तक भी काफ़ी पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे यही बख्शिश का ही लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, और ख़वातीन हमारी को महरूम कर दिया जाता है जायदाद से, और दूसरे बेटों के नाम पे हिब्बा कर दी जाती है। लेकिन शहरों में अब ये थोड़ा सा रुझान कम हो गया है, क्योंकि शहरों में ख़वातीन पढ़ने लिखने लग गई हैं और उनके पास ये शऊर आ गया है, वो इन चीज़ों को समझने लग गई हैं और हिब्बा को चैलेंज भी करना शुरू कर दिया है। मैं कहूँ कि मैं मिसाल के तौर पे मैं बाप हूँ, तो मैं अपने बेटे बड़े बेटे को कहूँ कि यार मैंने ये मैंने अपनी जायदाद सारी आपके नाम कर दी, हिब्बा आपके तरफ कर दिया सर। लेकिन सर एक चीज़ मैं इसमें बिल्कुल कहूँगा कि मैं अपने लिए अपनी कब्र का अजाब खरीद रहा हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चे पीछे जब लड़ेंगे, आपस में केस करेंगे एक दूसरे के ऊपर, या जलालत बनाएंगे अपने लिए, तो सर मेरी कब्र कितनी जलेगी या कितना अजाब मैं अपने लिए छोड़ जाऊंगा। तो उससे बेहतर मेरा तो तरीकाकार यही है कि मैं अपने जिंदा हयात जब जिंदा हूं तो सारा कुछ उसको तकसीम करके जाऊं, यानी कि बेटियों का अपना हिस्सा, बेटों का अपना हिस्सा तकसीम करके जाऊं, कि मेरे लिए एक कब्र का अजाब ना बने। तो हम लोग जानबूझ के कब्र का अजाब खरीदते हैं अपने लिए। क्यों खरीदते हैं? सिर्फ इसी वजह से कि हम अपनी बेटों को या बेटियों को एक एक चीज को तकसीम करके नहीं जाते। अच्छा सर, मेरा आज का अगला सवाल ये है कि इंतकाल तमलीक क्या होता है सर? जी वामिक, इंतकाल तमलीक या तमलीक नामा, ये एक वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए, इंतकाल तो नॉर्मली जिस तरह एक सिंपल इंतकाल होता है, विरासत का इंतकाल या बै का इंतकाल, उसी तरह इंतकाल ही है। अब तमलीक जो है ना, इसमें एक नया लफ्ज आपने सुना होगा, नया वर्ड आ गया है एक्चुअल में। इंतकाल तमलीक, अब मैं आपको बड़ा वसाहत के साथ बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उस मुतवफ़ी का एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए उसकी विरासत जायदाद को बांटा जाता है। अच्छा, उस विरासत को बांटते हुए ना काफ़ी सारे झगड़े हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि सालों तक आपस में बोलचाल ख़त्म हो जाती है। बाज़ दफ़ा जो है वो लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते हैं कि किसी का हाथ पांव टूट जाता है लड़ाइयों में। बाज़ दफ़ा ये कत्ल गारत तक बात पहुंच जाती है। तो कुछ जो समझदार बुजुर्ग है वो इस मामले को अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में ही निपटा देते हैं। अब जब अपनी ज़िंदगी में निपटाते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे 4 औलादे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, कल को मेरे बाद ये झगड़ते ना रहें विरासत को लेके कि एक कहे जी फ्रंट वाली ज़मीन मुझे चाहिए, दूसरा कहे मुझे चाहिए, वो 2 भाइयों का झगड़ा हो जाए
या इस तरह कोई भी मसला ना हो, तो मैं अभी जिंदा हूँ चूंकि, तो मैं अभी इस विरासत को, विरासत तो खैर उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि विरासत तब बनती है जब कोई इंतकाल कर जाता है, तो बाद में उसकी विरासत होती है वफात के बाद। अभी बंदा जिंदा है तो अपनी जायदाद को मैं अपनी हयात में ही इनमें बांट के दे दूँ। अच्छा, जब वो उस जायदाद को बांट के दे देता है अपनी हयात में, तो उसको इंतकाल तमलीक कहा जाता है। अच्छा, अब इंतकाल तमलीक को अभी मैं मज़ीद आगे गहराई में जाके आपको बताऊं, तो सिंपली आपने राजी रिकॉर्ड सेंटर, लैंड रिकॉर्ड सेंटर या पटवार खाना, वहाँ पे जाना है। वहाँ जाके आपने बताना है जी मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसका मैं इंतकाल तमलीक करना चाह रहा हूँ। तो वो क्या कहेंगे, सिंपली आपको एक फॉर्म दे देंगे, शजरा फॉर्म उसको कहा जाता है। शजरा फॉर्म लेके आप चले जाएंगे, उस शजरा फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपने उस शजरा फॉर्म की तस्दीक करानी है इलाके के नंबरदार से, और एक दो पत्तीदार वहाँ के, उनसे तस्दीक करवाने के बाद पटवारी तस्दीक करेगा उसका। इन तीनों से तस्दीक करवाने के बाद आपने शजरा फॉर्म लेके जाना है दोबारा पटवार खाने में या अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे, और वहाँ पे जाके आपने वो देना है, और साथ में एक जो फीस होती है। अच्छा, इस इंतकाल में ना कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, सिर्फ 1000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। 1000 रुपया फ़ीस देनी है, और अपनी जो भी जायदाद है जिस तरह से आप बांटना चाह रहे हैं उस तरह से उनको डिटेल्स देनी है। वो सारा बंटवारा करके बांट के इंतकाल करके पर्चा आपके हाथ में दे देंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा इसका प्रोसीजर था। लेकिन अब जो है ना, लोग इसको मुस्बत तौर पे यूज़ नहीं कर रहे, मनफी तौर पे यूज़ कर रहे हैं इंतकाल तमलीक को। फिर यहाँ पे मसला वो ही है कि जब भी इस हमारे माशरे में पिसी है चक्की में, तो वो औरत पिसी है। अब लोग इंतकाल तमलीक सिर्फ इस सोच से ज़्यादा करवा रहे हैं कि बेटी को हक से महरूम किया जाए, बेटी को विरासत से महरूम किया जाए, सिर्फ बेटों को दी जाए। तो ये तरीका गलत है। हाँ, अगर इंतकाल तमलीक आप जो एक अच्छी सोच से करवा रहे हैं, मुस्बत सोच से करवा रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में इस विरासत को बांट दिया जाए, हर बेटे को, हर बेटी को दे दी जाए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि बेटी को यहाँ पे महरूम किया जाए, सिर्फ बेटों के नाम पे मैं अपनी ज़िंदगी में जायदाद कर दूँ, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं। फिर इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, सॉरी, यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी बात भी काटूंगा। ये फिर हिबा भी तो सर आपने बताया, तो अगर जैसे आप ये बता रहे हैं इंतकाल तमलीक के बारे में, हिबा भी तो सर इसी तरह होता है, तो फिर हिबा और इंतकाल तमलीक में फ़र्क क्या है बेसिकली? अच्छा वामिक, हिबा और इंतकाल तमलीक में बहुत फ़र्क है। हिबा देखें ना, अगर प्रॉपर्टी की टर्म में ये हिबा का वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारी आम आवाम नहीं समझती, क्योंकि एक अलग टर्म है प्रॉपर्टी की। हिबा का असल मतलब होता है तोहफा, गिफ्ट। अच्छा, जब हिबा करके किसी को दिया जाता है तो उसको गिफ्ट डीड कहा जाता है। अब हिबा जो है, इसको अगर मैं वजाहत के साथ बताऊं, हिबा कोई शख्स किसी को भी दे सकता है। मतलब हिबा भाई भाई को भी दे सकता है, दोस्त दोस्त को भी दे सकता है, बहन भाई को भी दे सकती है। इसमें कोई रिश्तों का तयन नहीं है कि आप किसी ख़ास रिश्ते को ही दे सकते हैं या आप अपने वारिस को ही दे सकते हैं, लवाहिकीन को ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसी को भी दिया हिबा किया जा सकता है, प्रॉपर्टी आपकी जितनी भी है। अच्छा, पर हिबा में 1/3 पार्ट जो है ना, 1/3 हिस्सा आप हिबा कर सकते हैं, वो किसी को भी, यानी दोस्त को भी कर सकते हैं। लेकिन इंतकाल तमलीक पे अगर हम चले जाएँ, तो इंतकाल तमलीक आप सिर्फ उन लोगों के लिए करवा सकते हैं जो आपकी वफ़ात के बाद आपके शरई और कानूनी वारिस बनते हैं। अब इंतकाल तमलीक तो ज़िंदगी में होता है, आप जिंदा हैं और अपनी विरासत को बांट रहे हैं, तो बस जब आप लेट्स सपोज आफ्टर डेथ जिन वर्षा में आपकी विरासत बटेगी, इंतकाल तमलीक भी सिर्फ उन लोगों को किया जा सकता है। जैसे आपका दोस्त है और उसको आप इंतकाल तमलीक करवा के देना चाह रहे हैं, तो आप नहीं करवा के दे सकते, उसको हिबा ही कर सकते हैं। हाँ, अब ये है कि हिबा करें या इंतकाल तमलीक करें, इसमें जो एक प्रॉपर्टी के टैक्सेस होते हैं उससे आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। टैक्सेस आपको पे नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ जो एक कानूनी फ़ीस, जैसे पहले भी बताया, 1000 रुपया इंतकाल तबलीग की एक कानूनी फ़ीस है जो आपने पे करनी होती है। सेम लाइक एज हिबा की भी कानूनी फ़ीस, वो भी 1000 रुपया आपने पे करनी होती है। तो ये एक मेजर फ़र्क है इंतकाल तमलीग में और हिबा में। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन करूंगा मैं। ये जो इंतकाल तमलीग है, क्या इसको भी चैलेंज किया जा सकता है जैसे हिबा को चैलेंज किया जा सकता है, आपने बताया था, क्या इसी तरह इंतकाल तमलीग को भी चैलेंज किया जा सकता है? जी वामिक, इंतकाल तमलीग को चैलेंज किया भी जा सकता है और चैलेंज नहीं भी किया जा सकता।
अब देखना ये है कि किन सूरतों में चैलेंज किया जा सकता है और किन सूरतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर तो कोई वालिद जो है अपनी जायदाद जो है उसका बंटवारा कर रहा है इसलिए कि मेरे बेटे जो हैं ये बाद में लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में उलझते ना रहें इस जायदाद को लेके, तो मैं अपनी ज़िंदगी में इंतकाल करवा देता हूँ इनके नाम पे जो मैंने प्रॉपर्टी देनी है, तो उसको इंतकाल तमलीक कहा जाता है। अच्छा, अब अगर वो वालिद जो है शरीयत और कानून की रूह से इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल इंसाफ के साथ हर बेटे को हर बेटी को हिस्सा देता है और बराबर देता है, तो इस तरह का इंतकाल तमलीक कल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो ही वालिद सिर्फ एक चालबाजी कर रहा है कि मैं इंतकाल तमलीक करा देता हूँ सिर्फ बेटों के नाम पे और बेटियों को इससे महरूम कर देता हूँ, तो अगर वो ऐसा करता है तो कल को उसकी वफ़ात के बाद बेटियां उठ के इस चीज़ को चैलेंज कर सकती हैं, कोर्ट के अंदर दावा कर सकती हैं, और जब वो दावा करेंगी तो मैक्सिमम कोर्ट के केसेस में देखा जाता है कि औरत दावा जीत जाती है, कि क्योंकि औरत को जो है ना कानून और शरीयत दोनों विरासत के अंदर हिस्सा देते हैं। भले अब कोई अपनी ज़िंदगी में इंतकाल तमलीक करवा देता है और औरत का हक खा जाता है, मार देता है या हिब्बा कर देता है किसी और को जगह, और औरत बहन बेटी का वो हक जो है मार दिया जाता है, लेकिन वफ़ात के बाद जब वो चैलेंज करती है तो वो केस जीत जाती है। काफ़ी सारे केसेस इस तरह के मैंने भी देखे हैं, और बाज़ दफ़ा जो है ना बेटे जो हैं वो बेवा का हक खा जाते हैं, मतलब जो उनकी वालदा होती हैं उनको हक नहीं देते, फिर वालदा अगर केस कर देती है तो हक उसका जो भी हिस्सा होता है मिल जाता है विरासत में। तो इंतकाल तमलीक को अगर तो उसकी फेयर पार्टीशन हुई है तो फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर पार्टीशन पे सारे भाई एग्री हुए हैं, जो भी औलादें थी एग्री हुई और उसी के मुताबिक उनको कब्जे मिले और कब्जे में वो रह रहे हैं। अब वालिद साहब फौत हुए हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि वालिद साहब ने तो मुझे पीछे का हिस्सा दे दिया था, दूसरे को आगे का दे दिया था। वो फिर खानगी तकसीम को भी कोर्ट मानती है, लेकिन ये तो खानगी तकसीम नहीं है, ये तो प्रॉपर इंतकाल हो रहा है। लेकिन अगर इंसाफ नहीं रखा गया, सिर्फ बेटों के नाम पे गई है, बेटियों को बीच में से महरूम कर दिया गया है, तो बेटियां केस कर सकती हैं, चैलेंज कर सकती हैं।